بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات، آپ سب کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے ہم لوگ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اتحادی جماعت کے ساتھی پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور سب ساتھی ہم لوگوں نے ایک علامتی مارچ کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک اور واپس۔ آج کی پریس کانفرنس اور یہ احتجاج کا مقصد سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، ہمارے جتنے اسیران ہیں، خواتین ہیں، ہمارے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ہمارے جتنے کے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں، ان ساروں کے لیے ان کے خلاف جو بوگس کیسز لگے ہوئے ہیں اس کی ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ایک گھٹیا کیس جو ان پہ لگایا ہوا تھا اس پہ بری کر دیا گیا اور بشرا بی بی کا روپکار بھی جاری ہو گیا تھا۔ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور میں خود ہم لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے 3.5 گھنٹے کھڑے رہے۔ نیب کی ٹیم نے آ کے جھوٹے کیسز میں ان کو پھر گرفتار کیا، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات، خواتین و حضرات، ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ، ہم لوگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی کیس ہو وہ نہ سنیں۔ وہ اس میں ایک پارٹیزن پارٹی ہیں، انہوں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا ہے۔ ہم لوگ ان کا بینچ پہ شامل ہونا ہماری کیسز کے سننے کے لیے ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ نمبر 3، جو آپ کا ایڈ ہاک ججز کا سلسلہ ہے، ایڈ ہاک ججز یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے۔ 56,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں۔ 3 یا 2 یا 4 ایڈ ہاک ججز کو لگانے سے یہ 56,000 کیسز ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی روٹ کاز میں جائیں اور عدلیہ کی ریفارمیشن ہونی چاہیے کہ سستا اور صاف انصاف لوگوں کو مہیا ہونا چاہیے۔ 56,000 کیس کا سپریم کورٹ میں ہونا کسی قسم کی سوچ سے بالاتر ہے، اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہم خیال جج اپنے ساتھ لگائیں، جس کو پاکستان کی وکلاء برادری اور بالخصوص ہم سیاسی ورکر شدید الفاظ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں واضح طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کا باپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بین کر سکتا۔ عمران خان، ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں، 3 کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں، ہم لوگوں نے پاکستان کی ماں دھرتی کے لیے ہمارا آخری قطرہ خون کا ہم لوگوں کا میسر ہے اور ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں اپنے مادر وطن کی دفاع کے لیے۔ کوئی ہماری اس پیٹریٹزم پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک اور اہم بات کہ اس وقت جو ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، ان کو انٹر سروسز انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس، انٹیلیجنس بیورو، FIU اور اسپیشل برانچ کے لوگ اور اس کے ساتھ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے لوگ جھوٹی FIRوں میں اٹھا رہے ہیں، ان کو دوسری جگہوں میں رکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ MNA فیاض صاحب موجود ہیں، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بیٹے کی تشدد کی آوازیں ان کی والدہ کو سنائی گئیں، ان کے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میں فیاض صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ پیش کیا بیرسٹر گور صاحب کو، اور وہ سچے
सिपाही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे। यहाँ पे मौज़म जतोई साहब को परसों सुबह से अगवा किया गया। उसके साथ साथ हमारे जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहाँ से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को दोनों से अगवा किया हुआ है और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं और यहाँ पे स्पीकर नेशनल असेंबली साहब को मेरी खुद बात हुई थी। सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मैं हर एक इंसिडेंट से, वाक़े से आगाह करता रहा हूँ। आइन और कानून में ये है कि किसी मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट या करना हो तो स्पीकर के ऑफिस को ज़रूर इत्तला देनी पड़ती है और इजाज़त लेनी पड़ती है। वो नहीं दी गई और वो इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत है, जंगल का कानून है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और हमारी इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, आपकी MI, IB, FIU, आपकी स्पेशल ब्रांच, ये सब की सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स के पीछे उनके जो डाले हैं, वीगो डाले, वो फिर रहे हैं और ना कि वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आपके दहशतगर्दों का ताक़ुब करना है, वो से गाफिल है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो अपनी सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे तवज्जो दें और दहशतगर्दी का सदेबाप करें। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि हमने प्रिविलेज मोशन दायर कर दिया है सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और स्पीकर के ऑफिस में, जिसमें शिबली फराज साहब, शंदाना गुलजार साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, जुनेद अकबर खान साहब और मैं, हमें अडयाला जेल में 4 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने से रोका गया था। बाहर हमें चौकी से निकाला गया था। वहाँ पे पुलिस एहलकारों के, ISI के लोगों के, और उनको हमने समन किए बशमूल सेक्टर कमांडर रावलपिंडी इस्लामाबाद ISI कि वो आके बताएं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और जेल नॉर्मल जेल की तरह सिविलियंस के कंट्रोल और पुलिस के कंट्रोल में क्यों नहीं है, जेल अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में क्यों नहीं है, और यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग क्यों यहाँ पे अपना मनमानी कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जो कि हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे थे। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, हमारा इस्लामाबाद का जलसा भी होगा, हम लोग इंशाल्लाह स्वाबी के मुकाम पे भी करेंगे और हमारे भरपूर जलसे होने हैं पूरे पाकिस्तान में। हम लोग आखिरी दम तक हम लोग काम करते रहेंगे। और आखिर में मैं एक बार फिर जो हमारे साथी एंटी करप्शन केसेस में हमारे साथियों के खिलाफ बोगस FIR आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, मरियम नवाज जो कि फॉर्म 47 की वज़ीर आला है और शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग कानूनी चाराजोई और कानूनी अमल पे भी पूरा हम लोग पुश करेंगे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हदायत के परखचे उड़ाए जा रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ओवर टू बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद शिबली फराज साहब। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। उसमें हमारे मने साहिबान ने शिरकत की, उसमें हमारे सेनेटर साहिबान और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली साहब ने भी शिरकत की। उसमें हमारे इत्तेहादी जनामा अनामा नासिर साहब MWM के चेयरमैन शरीक हुए। उसमें सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हामिद रज़ा साहब भी शरीक हुए। आज हमने मुतफ़िका तौर पर इम्पॉर्टेंट फैसले किए हैं। सबसे पहला फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुँह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक़ में एक फ़ैसला दिया। हम काजी फाइज़ा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है,
इस फैसले में मनवान अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले की दिफा हो और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो। 4 जजेस को एडहाक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। छुट्टियां शुरू हो गई, सितंबर 15 तक छुट्टियां हैं। 1 महीने तक आपने इन 4 जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये एडहाकिज़म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है, मेहरबानी करे इससे इज्तनाब करे। आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब की तरफ से और आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब की तरफ से हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इक़दामात से आप गुरेज करें। जजेस इसे इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़ा बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है, ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने का। उसके साथ ही हमने फैसला किया है और हम शुक्रिया अदा करते हैं सारे वकला तंजीमों के, वकीलों के, उन पॉलिटिकल पार्टी ने के जिन्होंने एडहाकिज़म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। इसके साथ आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 37 MNA ने अपने एफिडेविट्स फाइल किए हैं, उसकी कन्फर्मेशन हम भेज रहे हैं। बाकी हमारे 3 MNA साहिबान हैं, वो दुबई में थे और उम्रा पे हैं, उनके एफिडेविट आज मिल जाएगी इंशाल्लाह, वो भी कल सबमिट हो जाएगी और उनका भी हम कन्फर्मेशन भेजेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं, ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज़ है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस रिपोर्ट फौरन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी जल्द फाइल होगी। शिबली साहब, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ज़रूरी, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना साहिबा ने आर्टिकल्स लिखे, बयानात दिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उन्होंने माइंड दिया काजी फैज़ ईसा साहब। मैं फिर रिएट्रिएट करता हूँ, उनको PTI का कोई केस नहीं सुनना चाहिए। और आखिरी डिमांड मेरी तरफ से, फिर शिबली फराज साहब बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान अकरम राजा और उसके चारों कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उसके तमाम कमिश्नर्स फिल फॉर रिजाइन करें, वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अक्सर बातें मेरे साथियों ने कर ली हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से जिस तरह के ये सिस्टम बेनकाब हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम को ये मालूम हुआ है कि उनकी जो किस्मत है वो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें जिससे कि इस पूरा जो कि एक अवाम की जो एक राय थी, अवाम का जो एक मैंडेट था, वो वापस अवाम के नुमाइंदों की तरफ जा रहा है। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस ख़त्म हो गई हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आईन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जिस तरह से आईन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती
पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखिए, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दें, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करें, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी मराहत जो थी, जो कि एक मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। बिजली महंगी होगी, ये मजीद जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीज़ों को देखे। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात ना सुने, अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम के मसाइल को आगे करें, उजागर करें। माजरत, इसलिए ये चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख चुके हैं, वो चीज़ें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायीद करता हूँ अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफ़ा हो देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। इसलिए अगर हमने इस मुल्क को एक महज़ब उसमें लाना है, महज़ब से भी एक दर्जा कम, तो आपको आईन की और कानून की हुक्मरानी माननी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हुक्मरान टोला जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी, जब बैन लगा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे, आज उनके पास एक मौका है या था कि अपनी उस गलती को वो दुरुस्त करते। और ये जो बात की है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, जिसके के वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड लें, बीच बीच में ना खेलें। इसलिए जो हमारे MNAs को किडनैप किया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आखिर में जो खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मन घड़त सियासी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा लीडर हैं। उनके साथ ये रवैया, इस मुल्क के अवाम के साथ ये रवैया है। और पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी होश के नाखुन लें, आइन पे और कानून की अमलदारी पे काम करें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना केओस है, एनार्की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये अब एक सेकंड, ये ज़रदाद गुल बात करेंगे, सिर्फ एक सेकंड। बहुत गर्मी में दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोबारा से धूप और गर्मी में हमारे लिए खड़े और हमारी बात को आप पहुँचा रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे दो बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अलामा नासिर साहब भी आपसे बात करें, साहिबजादा साहब भी आपसे बात करें। PTI को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अज़ादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अज़ादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNAs PS के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरी के साथ बोला गया था। लिहाजा
یہ جو سلسلہ اگر بند آپ نے نہ کرا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملک میں واقعی انارکی ہے، کیونکہ پورے پاکستان کی ایک آواز ہے، پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی رہے گی۔ عمران خان تھا، عمران خان ہے اور عمران خان انشاءاللہ رہے گا۔ بہتر یہ کہ آپ سے جنگ کرنے کے بجائے آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یہ اسپیکر اسد کیسر صاحب الائنس کے بارے میں، اس کے بارے میں ضروری آپ سے بات دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، میں مختصر بات کروں گا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو انہوں نے انارکی پھیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ملک کو آئین جو ہے نا سرزمین بے آئین بنا دیا ہے اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک پہ کوئی قانون یا آئین ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کے زور پر کر رہے ہیں، یہ بدماشی کے زور پر کر رہے ہیں، اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ ہم صرف قانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے، یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے۔ جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ پھیلے۔ ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں۔ الائنس کے حوالے سے ہماری جو ہے نا 1-2 دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی۔ جی ڈی اے سے بھی رابطہ ہے، جمعیت علماء اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہے۔ اس جولائی میں ہم اس الائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے۔ اس نے جو ہے نا اپنی لیے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو ہے نا رائے فرار ملے۔ رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ، اعلان کرو، معافی مانگو اور کہو کہ یہ جعلی مینڈیٹ تھا میرے پاس، اصلی مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے، عمران خان کے پاس ہے، تو آپ کی کچھ نہ کچھ سیاست بچ جائے گی۔ ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں، انہوں نے جو بجلی کے حال کیے، جو بجلی کے بل لوگوں کے پاس جائیں گے نا، یہ عام غریب آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں گے۔ جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، یہ ٹیکس کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے نا یہ پے کر سکیں گے۔ یہ جو پیٹرول کے اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، ہم عوام سے یہ یقین چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ٹھیک ہے، عمران خان اس وقت جیل میں ہے، وہ آپ کے لیے ہے، اس ملک کی ساورنٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے ہے۔ عمران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کے لیے، حقیقی پاکستان کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے سے رہا ہے۔ عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں، جو خیبر پختونخوا میں یہ جو ایک سچویشن بن رہی ہے، وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں، وہاں کے فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں، وہاں جس طرح یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، یقین جائے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں، ہم 1-2 دن میں جو ہے نا اپنے الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم لائے عمل دیں گے۔ جی تھینک یو، السلام علیکم۔ رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، خاموش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں، میں 3-4 پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اسٹریٹجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم فیلئر کو ری انفورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو ری انفورس کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی بحران، معاشی بحران، سیکورٹی کا بحران اور وطن کو تباہ و برباد کرنے کا بحران جاری ہے، اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بحران ہے، کیونکہ خود وطن کے اوپر مصیبت ہے۔ خداوند متعال سے پاکستان کے عوام کو نجات دے۔ دوسری بات، یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے، فارم 45 میں ہارا ہوا ہے۔ یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں، قانون کے خلاف حکمران بننے ہیں۔ اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے، ان پر لگانا چاہیے اور جو ان کو لے کے ہے اس پر لگنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹیکل انکروچمنٹ کی ہے، پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ وطن سے دشمنی ہے، وطن سے محبت نہیں ہے۔ جو جس کا کام ہے وہی کرے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں خان صاحب پر پابندی لگانی ہے۔ خان صاحب پر پابندی یعنی پاکستان پر پابندی، یعنی آئین پر پابندی،
यानी कानून पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम की जुबान पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम को आंखों के आगे पट्टी बांधना, कानों पर मोहरें लगा देना, ये हर किस कबूल नहीं है और पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। ये लोग पाकिस्तान के अवाम से लड़ रहे हैं, जो भी पाकिस्तान से, जो भी अपने अवाम से लड़ता है हार जाता है। ये हारा हुआ लश्कर है, ये बुखलाया हुआ है, ये कमज़ोर है, शिकस्त खुर्दा है, ये पागल है, दीवाने हो चुके हुए हैं, ये अपने होश में नहीं है। खुदावंद मुताल इन्हें जल्द रुसवा करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। रिहाब करो, रिहाब करो, रिहाब करो, रिहाब करो। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। और हम, मैं आपको बता रहा हूँ, जीबी से लेकर पाकिस्तान के समंदरों तक खान साहब के साथ हैं, मरते दम तक साथ है, अपनी सांस तक साथ है और उनकी तरफ उठने वाली आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। बाहर वो आज पहुंच रहे हैं, बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं। देखिए, एक जो है हमारा एक महबूब सुल्तान साहब है, वो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उन्होंने मिल गए हमारे। एक है हमारा मुबीन जट साहब है, तीसरा है हमारा मलिक उमर साहब है, वो रियाज फतियाना साहब का भी अभी नहीं आया, वो भी आ जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।